السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم مومنوں کی اگلی خوبی بتائی ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس میں ایک تو حدیث ابھی سسٹر نے بتائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دی اس کے لیے جنت پکی ہے۔ پہلی جو اس کے دانتوں کے درمیان ہے یعنی اس کی زبان، اور دوسری جو اس کی جانگوں کے درمیان ہے یعنی کہ شرمگاہ۔ جو شخص بھی مجھے ان دو چیزوں کی گارنٹی دے دے اس کے لیے جنت پکی ہے۔ اب یہ دیکھیں وہ گارنٹی کس نے دی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر آپ کو ان کی بات پر بھروسہ ہے تو صرف دو چیزوں کو قابو میں رکھنا ہے، ایک اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے، اس سے بڑی احتیاط سے بولنا ہے۔ اسی کی اس زبان کی وجہ سے ہی مطلب فساد ہوتے ہیں۔ اور دوسری ہے شرمگاہ، اس کو یوں ہی آزاد نہیں چھوڑ دینا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے جو جائز طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اسی جائز طریقے سے استعمال آپ کو کرنا ہے، اس کے علاوہ آپ ہرگز استعمال نہیں کریں گے۔ تو شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں مومن اپنے۔ تو شرمگاہ کی حفاظت میں بھی دو باتیں ہیں، ایک تو وہ شرمگاہ کو ایسے ہی آزاد نہیں چھوڑ دیتے کہ وہ جنسی تعلق جس سے چاہیں اس سے جا کر بنا لیں، نہیں، وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اگلی آیتوں میں آئے گا سوائے کن کے؟ اپنی بیویوں کے، اور جو ملکیت میں ان کی لونڈیاں جو کہ آج کے ٹائم میں نہیں ہے، یعنی صرف اپنی بیویوں کے، اگر آج کے ٹائم کی میں بات کروں تو۔ اور دوسری بات وہ شرمگاہ کی حفاظت میں یہ آئے گی کہ جو ان کا ستر ہے وہ اس کو چھپا کر رکھتے ہیں، اس کو ڈھانک کر رکھتے ہیں، وہ کسی کے سامنے اپنا ستر کھولتے نہیں ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ستر ہے جو کہ ہر انسان پہ ڈھانکنا فرض ہے، یہ بھی شرمگاہ کی حفاظت میں ہی آئے گا۔ یہ ہمیں بتا دیا ہے کہ مرد کے لیے کتنا ہے اور عورت کے لیے کتنا ہے۔ مرد کے لیے جو ستر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ ہے نابھی، یعنی جو یہ نابھی ہماری پیٹ پر جو ٹونڈی اس کو بولتے ہیں، اس سے لے کے گھٹنے تک یہ ستر ہے، یہ ہر مرد پر ڈھانکنا فرض ہے۔ یہ صرف عورتوں سے نہیں، مرد کا مرد سے بھی ڈھانکنا فرض ہے۔ مرد بھی اپنا ستر دوسرے مرد کے سامنے نہیں کھول سکتا، یہ حرام ہے اس پہ اگر وہ کھول رہا ہے تو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ سنن دارقطنی میں ہے اور بہقی میں یہ حدیث آپ کو ملے گی کہ مرد کا ستر اس کی نابھی سے گھٹنے تک ہے۔ ایک اور حدیث ہے سنن ابو داؤد میں، وہ حدیث ہمیں ملے گی 4014 نمبر پہ، ابن ماجہ میں وہ حدیث ہے 1460 نمبر پہ، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں جو راوی کرنے والے صحابی ہیں، اصحاب صفہ میں سے ہیں، وہ بڑے بزرگ، اسلمی ان کا نام ہے، وہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ان کی جانگ کھل گئی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جانگ کو کبھی نہ کھولو، یعنی مجلس میں ہے اور کوئی تہمند وغیرہ ہوگا تو اس میں ان کی جانگ دکھ گئی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہیں ٹوک دیا، نہیں، اپنی جانگ کو وہ کبھی بھی نہیں کھولے۔ تو یہ چیز ہے، یہ مرد کا ستر ہے جو اسے ڈھانک کر رکھنا ہے ٹونڈی سے لے کر گھٹنے تک۔ اب یہ دیکھ لیں ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے۔ اور یہ ستر آپ کو مرد کا مرد سے بھی ڈھانکنا ہے، صرف عورتوں سے نہیں، مرد کا مرد سے بھی ڈھانکنا فرض ہے۔ یہ دیکھیں جو لوگ ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں، جو لوگ جم کرتے ہیں اور جم کرنے کے بعد وہ چیمپئن شپ میں جاتے ہیں تو کیا پہناتے ہیں انہیں؟ صرف ایک قطر کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ جو لوگ اپنے سکس پیک ایپس دکھاتے ہیں، اپنی جو تھائی وہ دکھاتے ہیں وہاں میوزک پہ، تو وہ کیا حرام کام نہیں ہے؟ وہ پوری دنیا کے سامنے شو کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری باڈی بنائی ہے، کچھ لوگ اس کو اتنا اتنا پاؤڈر، اتنا کریٹین کھا کھا کر اس کو ایسا کر لیتے ہیں کہ ان کی باڈی میں کٹ ہی کٹ نظر آتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا۔ پھر اوپر سے اس باڈی پہ وہ مہنگا والا آئل لگاتے ہیں تاکہ جو ان کے کٹ ہیں وہ اور مطلب واضح ہوں۔ پھر وہ چیمپئن شپ میں جاتے ہیں، ویڈیو ریکارڈ ہوتی ہے ان کی، اور وہ اپنی تھائی بھی دکھاتے ہیں جو کہ ڈھانکنا فرض ہے، اپنے جو سکس پیک ایپس ہیں وہ بھی دکھاتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے جو نیچرل باڈی رکھی ہے ایک مومن کی، وہ ان کی نہیں بستی، وہ صرف ان کے اندر پاؤڈر ہوتا ہے۔ تو یہ چیز بھی حرام ہے، ہم اس چیز پہ دھیان ہی نہیں دیتے۔ ہمارا یوتھ ہے جم کی طرف بھاگی چلے جا رہا ہے۔ بھائی آپ کی شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہو رہی، وہاں ستر کھولنا پڑ رہا ہے، آپ ایسی جگہ جائی کیوں رہے؟ آپ نہیں جائیے۔
और जो लोग उन गेम को देखने के लिए जा रहे हैं वो भी गुनहगार हैं। आप किसी मर्द का सतर कैसे देख सकते हैं? आप नहीं देखिए। तो शर्मगाह की हिफाजत में ये आपको सतर ढाकना पड़ेगा। और औरत के लिए भी जो सतर है उसको भी ढाकना फर्ज है। औरत भी अपना सतर दूसरी औरत के सामने भी ना खोले। ऐसा नहीं सिर्फ मतलब कि मर्द से ढाकना, वो ढाकना फर्ज है। वो भी दूसरी औरत के सामने अपना सतर नहीं खोल सकती है, जो अल्लाह ताला ने फर्ज किया है उसके ऊपर। औरत का सतर क्या है? चेहरे की टिकिया छोड़कर, जो हमारा फेस है, और हाथ की जो हमारे हैंड है आगे से, और जो हमारे मतलब पैर है, इसको छोड़कर पूरी बॉडी औरत की सतर है। ये ढाक कर रखना है। इसमें भी आप देख लीजिए, हमारा मुआशरा एक अलग ही है, वो हिफाजत ही नहीं कर पा रहा है। और जो अपने सतर की हिफाजत नहीं कर पाया वो शर्मगाह की हिफाजत भी नहीं कर पाएगा। डायरेक्ट बात वहीं से कनेक्टेड है। जिससे अपना सतर ही नहीं बच रहा वो शर्मगाह क्या बचा लेगा? वो जिना में मुलव्विस हो जाएगा। और ये औरत का औरत से भी, और औरत ये ना समझे कि जो मेरे महरम है, भाई है, बाप है, उनसे तो आपको और मतलब कि ज्यादा हया आनी चाहिए। उनके सामने आप बिना दुपट्टे के जा कैसे रहे? उनसे तो और ज्यादा हया आनी चाहिए कि आपका भाई बैठा है, आपका बाप बैठा है। ठीक है। तो इस चीज का हमें ख्याल रखना है कि वो जो सतर है वो हमें ढांक कर रखना है। अब मैं इससे ऊपर का भी एक स्टेप बता दूं। अगर आप अकेले में हैं तो भी आप पूरी तरह न्यूड या पूरी तरह नंगे नहीं हो सकते। आप अकेले में भी हैं, कमरे में कोई नहीं है आपके सिवा, फिर भी पूरी तरह नंगे होने को मना किया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि तन्हाई में भी नहीं होना है। सुनन तिरमिजी की यह हदीस है, 2800 नंबर पे आपको मिल जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खबरदार, वो कभी नंगे ना रहो, क्योंकि तुम्हारे साथ वो हैं जो कभी तुमसे अलग नहीं होते, यानी भलाई और रहमत के फरिश्ते। लिहाजा उनसे वो शर्म करो और उनके एहतराम का ख्याल रखो। ये है। तन्हाई में भी आपको न्यूड नहीं होना है, फरिश्ते तो देख रहे हैं ना। हया तो होनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईमान की 60 से ऊपर ज्यादा साखें हैं, जिसमें से हया भी ईमान की एक साख है। हया, ये ईमान की निशानी है। जिसके अंदर हया है उसके अंदर ईमान है। जिसके अंदर हया ही नहीं है उसके अंदर से ईमान चला गया। हया इंसान को जन्नत में लेके जाती है, एक हदीस का मफहूम मैं आपको बता रहा हूँ। और बेहयाई जुल्म है, और जुल्म इंसान को जहन्नुम में लेकर जाता है। हया, हमारे मुआशरे में हया को भी ना बड़ा वो समझ रखा है कि जो लड़का शर्मीला है, जो लड़की शर्मीली है, वो बात करने में उसको शर्म आ रही है रिश्तेदारों से, उसको हम कहते हैं ये हया है। वो हया नहीं है। वो भी हया का एक पार्ट है, उसको कह सकते हैं आप, लेकिन असल हया वो नहीं है। असल हया वो है जो हमारे हमारे दिलों से स्ट्रेच कर दी गई है। आज से आप वो कुछ साल, ज्यादा नहीं कहूंगा, 4-5 साल आप पीछे जाइए। अगर आपके घर में टीवी चल रहा है, अगर उसमें कोई ऐसा सीन आ गया, या ऐसा कोई गाना आ गया, या ऐसी कोई मूवी के दौरान कोई ऐसा सीन आ गया जिसमें रोमांस वगैरह है, और वो कोई वो 4-5 साल पहले इतना वो नहीं था जितना आजकल है, वो भी आता था, तो और फैमिली वाले बैठे हैं तो सब इधर उधर देखने लगते थे और चैनल चेंज कर दिया करते थे। वो थी हया। यानी हया आ रही है भाई हमें इसको देखने में। हम फैमिली में ये चीज नहीं देख सकते। लेकिन इस मुआशरे से फिर क्या हुआ? धीरे 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 हमारे अंदर से वो चीजें स्क्रैच कर दी गई, हया निकाल दी गई और बेहयाई दाखिल कर दी गई। आज आप देख लीजिए, कितना भी गंदा सीन चल रहा हो टीवी पे, मजाल है कोई बंद कर दे। बेटी वहीं बैठी है, बाप वहां बैठा है, भाई वहां बैठा है, देखना है सब, तीनों देखना। नॉर्मल हो गया, 18+ है, हम तो 18+ देख सकते हैं मूवी। भाई 18+ होते ही बेहया, मतलब आप बेहया हो सकते हैं? आप बेहया हो गए? आपको पता नहीं है आपके साथ कौन है? आप तो वो अकेले में देखने में भी मतलब गुनाह है, आप फैमिली के साथ उसको देख रहे हैं। तो ये थी हया। ये ईमान का एक पार्ट है। तो इसलिए मोमिन अपना सतर तन्हाई में भी नहीं खोलता है। ये है इस बात का मतलब। फरिश्ते तो है ना, वो तो देख रहे हैं।
अच्छा, किसी का ये क्वेश्चन हो सकता है कि शौहर और बीवी हम स्त्री करते हैं तो फिर क्या वो भी मतलब कि तन्हाई में सतर ना खोले? नहीं, उनका उनका मामला अलग है। उस दौरान फरिश्ते बाहर चले जाते हैं, क्योंकि वो जायज रिश्ता है, वो जायज रिलेशन है। उस टाइम फरिश्ते भी हया करते हैं, फरिश्ते भी हया करते हैं। लेकिन जब आप अकेले हैं, फिर तो कोई आप जायज का फिर तो मतलब कोई लॉजिक नहीं बनता ना आपकी तन्हाई में न्यूड हो जाए। तो शर्मगाह की हिफाजत करनी है, उसमें उसका एक डायरेक्टली पार्ट ये है कि आपको अपना सतर की भी हिफाजत करनी है। और शर्मगाह की हिफाजत पर हम काफी बात कर लें कि मुआशरे में ये कितना आम हो चुका है, जिना फैल चुका है। हम देख रहे हैं कि ईद के दिन आप कि देखें, मुसलमान 30 दिन रोजे रखते हैं और अगले दिन सारी लड़की और सारे लड़के वो कैफों में नजर आते हैं, सारे होटल में नजर आते हैं। हमारे मुआशरे का आलम में पता नहीं है, हिफाजत हो रही है। वो 30 दिन रोजे रख के वो मुसलमान और कहाँ जाता है? मूवी देखने जाता है अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर। आंखों पे पट्टी तो नहीं मान सकते हम। यही हाल है हमारे मुआशरे का। तो हमें पता नहीं है हम कितने बड़े वो तबाही की तरफ हम जा रहे हैं। वो जहन्नुम है जिसमें जाकर हम सबको गिरना है अगर हम इसी डगर पर चलते रहें। तो शर्मगाह की हमें हिफाजत करनी है, और इसकी जिम्मेदारी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी दे दी कि हिफाजत करके ले आओ शर्मगाह और अपनी जवान की, तो जन्नत पक्की है। कि इतनी बड़ी चीज है, आपसे नहीं होगी इसकी हिफाजत। ठीक है, एक नंबर वन बात तो इसमें यह है कि अपना सतर नहीं खोलना, क्योंकि अगर आप बेहया हो गए, आपने सतर ही खोलना स्टार्ट कर दिया, तो आप अगले स्टेप पे भी चढ़ जाएंगे, आपसे शर्मगाह की हिफाजत नहीं हो पाएगी। एक और बात है, शर्मगाह की हिफाजत करने के लिए इंसान को अपनी नजर की भी हिफाजत करनी पड़ेगी। जिसने अपनी नजर नहीं बचाई, अपनी नजर की हिफाजत नहीं करी, उससे शर्मगाह की हिफाजत हो ही नहीं सकती। अगर वो पहले ही मार खा गया तो वो आगे भी जाएगा। शैतान धीरे धीरे लाता है। एक बार में किसी मुसलमान से ये नहीं कहेगा जिना कर ले और वो जाएगा और जिना कर लेगा, ऐसा नहीं होता। वो धीरे धीरे पहले बेहया बनाएगा उसको, फिर उसकी जो नजर है वो आजाद छूटेंगी, वो गैर महरम पर पड़ेंगी, फिर उसके अंदर डिजायर पैदा होंगी। ठीक है, शैतान उसको और भड़काएगा फिर अंदर से। तो फिर उसको शैतान जो मौके हैं वो भी मतलब फराहम कराएगा, ये रास्ता है, आजकल तो बड़ा इजी हो चुका है, यहाँ चले जाएं आप, यहाँ चले जाएं, ये कर लें, उससे बात कर लें, इससे बात कर लें। तो वो फिर वहां तक भी पहुंच जाएगा। तो पहला जो दूसरी जो चीज है, यानी वो अपना सतर ढाकने के बाद, उसकी हिफाजत करने के बाद इंसान अपनी नजर की हिफाजत करे। अगर उसने अपनी नजर की हिफाजत कर ली दुरुस्त तरीके से, जैसा कि उसके करने का हक है, तो उसने अपनी शर्मगाह की भी हिफाजत कर ली। सूरह नूर में अल्लाह ताला ने यही तो बताया, आयत नंबर 30 और 31 में। मोमिन मर्दों से भी, मोमिन औरतों से भी, दोनों से अल्लाह ताला ने कहा। सिर्फ मैं बात मर्दों की नहीं कर रहा, यहाँ औरतों की भी बात है। दोनों को, दोनों को मुखातब करके अल्लाह ताला ने कहा सूरह नूर आयत नंबर 30 और 31 में, ए नबी, ईमान वाले मर्दों से कहो कि अपनी नजरें बचा कर रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। तो इस आयत में आपको एक ताल्लुक दिखेगा, एक तालमेल दिखेगा। अल्लाह ताला ने कहा अपनी नजरें बचा कर रखें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत वो करें। इसका मतलब क्या हुआ? जिसकी नजरें नहीं बची उससे शर्मगाह की हिफाजत भी नहीं होगी। इसलिए अल्लाह ताला की तरतीब देखें कि नजरें बचा कर रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ये उनके लिए ज्यादा पाकीज़ा तरीका है। जो कुछ वो करते हैं अल्लाह उससे बाखबर है। तो ये है चीज कि नजरें बचा कर रखेंगे तो शर्मगाह की भी हिफाजत होगी। फिर आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला ने मोमिन औरतों के लिए कहा, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान वाली औरतों से कह दो कि अपनी नजरें बचा कर रखें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। औरतों को भी नजरें बचा कर रखनी है, अपनी शर्मगाह की हिफाजत उनको भी करनी है, उनको भी अपनी नजरें बचा कर रखनी है। ऐसा नहीं है कि मर्द पे पर्दा फर्ज नहीं है, तो भाई आपको अगर किसी मर्द को देखकर अट्रैक्शन पैदा हो रहा है तो नहीं देखेंगे आप उसे, क्यों देख रहे हैं आप उसे? वो आपके लिए फितना है। उस पे तो फर्ज नहीं है कि वो पर्दा करे, लेकिन आपको तो हुक्म है ना, आप अपनी नजरें बचा कर रखें।
तो मोमिन औरतों को भी अपनी निगाहों की हिफाजत करनी है, सिर्फ मर्दों को नहीं, औरतों को भी हिफाजत करनी है अपनी निगाहों की। और न, और नजरों की हिफाजत करने की जो तशरीह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अ, वो वो ये की है कि इंसान किसी भी औरत को जी भरकर मतलब नहीं देखे सिवाय अपनी बीवी के। यानी दूसरी औरत पर अगर निगाह पड़ जाए, गलती से पड़ जाए, जानबूझ के, अगर आपको पता है लेडीज आ रही है वहां पर, तो फिर वो जो कहते हैं ना पहली निगाह माफ है, हदीस की जो हदीस में अल्लाह के रसूल ने कहा कि पहली अचानक से पड़ जाने वाली निगाह माफ है, वो अचानक से पड़ जाने वाली निगाह माफ है क्या? लेडीज आ रही थी, आपको पता भी नहीं था, लेकिन आप निगाह पड़ गई, तो फिर क्या करेंगे आप? निगाह बचाएंगे उससे। वो बचाने का भी टाइम पीरियड 1-2 सेकंड ही होता है। आप उसका फेस भी नहीं देख पाएंगे कि वो है कौन। हमारे मुआशरे में अपोजिट चलते हैं कि लड़का अगर बाइक पे चल रहा है या कहीं वो कहीं खड़े हैं, उनसे कहेंगे कि भाई निगाह बचा कर रखो, पहली निगाह तो माफ है। भाई पहली निगाह माफ है, पर पहली निगाह में आपने पूरा अल्ट्रासाउंड कर दिया, स्कैन कर दिया उसको, वो निगाह कोई है? तो ये है कि हम पलक नहीं झपकेंगे, पहली निगाह माफ है। भाई पहली निगाह मारते मारते घर उसके मतलब पीछे पीछे चले जाइए उसके आप, क्या पहली निगाह माफ है? अचानक से पड़ जाने वाली निगाह माफ है, जो कि मोमिन तुरंत बचा लेता है उसको। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज की वो तशरीह की है कि इंसान अपनी निगाहों को भी खुला नहीं छोड़े, इधर उधर उसको दौड़ाता ना फिरे। ठीक है, जिस चीज में भी उसको लगे कि वो कशिश है, अट्रैक्शन है, उससे दूर हो जाए। औरत के लिए भी है, औरत को लग रहा है किसी खास मर्द से अट्रैक्शन उसको हो रहा है, दूर हो जाए, बचे उससे। निगाह आपको बचानी है, अगर आपसे निगाह नहीं बची तो शर्मगाह नहीं बच सकती। यही सूर्य जो नूर में अल्लाह ताला ने आयतें बताई ना, इसकी तरतीब अल्लाह ताला ने इसी तरह बांधी है। सही बुखारी में हदीस है, मुस्लिम में भी है, सुनन अबू दाऊद में भी है। बुखारी में उसका नंबर 6243 में मिल जाएगा, मुस्लिम में भी आगे नंबर है, कि जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी अपने तमाम हवास यानी जो इंद्रियां हैं, आंख है, नाक है, कान है, ये हवास इंद्रियां हैं, इनसे बदकारी करता है। देखना आंख की बदकारी है, लगावट की बातचीत जबान की बदकारी है, आवाज से मजा लेना वो कानों की बदकारी है, हाथ लगाना और नाजायज मकसद के लिए चलना हाथ पांव की बदकारी है। बदकारी की ये सारी शुरुआती बातें जब पूरी हो चुकती हैं, तब शर्मगाहें या तो इसको पूरा कर देती हैं या पूरा करने से रह जाती हैं। ये देखें, हदीस में आपको दिखेगा, आप असल बात है शर्मगाह की हिफाजत करते हैं, वो हिफाजत कैसे करनी वो यहाँ एक्सप्लेन किया जा रहा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ साफ हमें बता दिया है कि हवास जो है अल्लाह ताला की, इंसान की जो इंद्रियां हैं वो भी बदकारी करती हैं। आंखों का भी जीना होता है, आप किसी गैर महरम को देख रहे हैं, उससे आप वो लुत्फ ले रहे हैं, तो जो आप ये जिना कर रहे हैं। या जो आजकल जो फोन मूवी के जो लोग एडिक्टेड होते हैं, वो आंखों का जीना कर रहे हैं डायरेक्टली। उसमें लड़के भी शामिल हैं तो लड़कियां भी शामिल हैं, वो भी कम नहीं है। उनके भी फोन की आप हिस्ट्री चेक करें। चेक नहीं करनी चाहिए, इस्लाम में मना है किसी की प्राइवेसी में मतलब कि बढ़ना। मैं एक मुहावरतन बात कह रहा हूँ, वो भी बराबर की शरीक है, वो भी अपनी आंखों की बदकारी कर रही है। तो ये आंखों का जीना है, ये आंखों की बदकारी है। जो किसी से लगावट की बातचीत करें, वो लड़का लड़की एक दूसरे से अट्रैक्शन वाली बातें करें, एक दूसरे से अट्रैक्ट हो, या अडल्ट बातें करें, वो भी बदकारी है, वो जुबान की बदकारी है। आप जुबान से किसी से ऐसी बात कर रहे हैं, बेहुदा बात कर रहे हैं, वो जुबान की बदकारी है। अगर आप किसी नॉन महरम की आवाज से ही मजे ले रहे हैं, वो आपके कानों की बदकारी है, वो कानों की बदकारी है। इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है कंटेंट, ऑडियो फॉर्म में भी आ रही है, ऑडियो फॉर्म में भी अवेलेबल है, वीडियो फॉर्म में भी अवेलेबल है, रीडिंग फॉर्म में भी अवेलेबल है, सारा कंटेंट अवेलेबल कर रखा है शैतान ने। आप कहीं भी जाके एक्सेस करिए। तो जो कानों से
हाँ लेते हैं, ये कानों की बदकारी है। और हाथ लगाना और नाजायज मकसद के लिए चलना हाथ पांव की बदकारी है। यानी आपने किसी को टच किया है तो ये हाथ की बदकारी हो गई, नॉन महरम को टच किया। और नाजायज मकसद के लिए चल रहे हैं आप, यानी आप जिना के अड्डे तक जा रहे हैं, आपको पता है जिना का अड्डा है वो, आप जिना के अड्डे तक जा रहे हैं। आपको पता है कि मेरा बॉयफ्रेंड या मेरी गर्लफ्रेंड उस होटल में आ रही है, आप चल के जा रहे हैं, भले ही आप वहां जाके करें नहीं, लेकिन ये आपका चलना भी ये मतलब कि वो जिना में शामिल है। ये भी आप एक नाजायज मकसद के लिए जा रहे हैं। ये चलना फिरना भी आपका बदकारी है, ये पैरों का जीना है। बदकारी की ये अल्लाह के रसूल ने फिर फरमाया, बदकारी की ये सारी जो शुरुआती बातें हैं जब पूरी हो चुकती हैं, यानी जब बंदा यहाँ से स्टार्ट करता है, निगाहों से, जुबान से, कानों से, जब ये पूरे हो जाते हैं तो फिर क्या होता है? तो या तो वो अपने अपनी जो शर्मगाह है इसके तकाजे को पूरा कर लेता है, यानी वो जिना कर लेता है, या पूरा करने से रह जाती है। यानी जो शर्मगाह है फिर या तो जिना कर लेती है या जिना करने से रह जाती है। दो ही ऑप्शन है के बाद, यानी इसके बाद बंदा जिना की तरफ जाता ही जाता है। तो हमें जो इसके दरवाजे हैं ना, वो दरवाजों पे ही हमें बंद करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, हमारे मुआशरे में एक चीज राइज है कि भाई इस्लाम आ जाएगा तो क्या होगा, जो जिना करने वाले लोग हैं उनको तो रजम कर दिया जाएगा, अगर वो शादीशुदा हैं, अगर कुंवारे हैं तो उनके कोड़े पड़ेंगे। इस हिसाब से तो हमारा मुआशरा खत्म हो जाएगा। नहीं, इस्लाम ऐसे मतलब सजाए नाफिज नहीं करता। पहले पहले ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उस तक जाने वाले सारे रास्ते बंद करें। आज के दौर में ये सजा नाफिज कर दोगे आप तो बड़ा आधे लोग कत्ल हो जाएंगे, हर किसी के डेली कोड़े पड़ने लगेंगे। क्योंकि अभी वो जो जराए हैं ना, वो जो दरवाजे हैं जो इस तरफ इंसान को लेकर जाते हैं वो बंद नहीं हुए हैं। इस्लाम क्या करेगा, सबसे पहले वो दरवाजे बंद करेगा कि अब हमारा मुआशरा पाक है, अब कोई दरवाजा भी जिना का बदकारी का खुला हुआ नहीं है, हमारा मुआशरा बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है। उसके बाद भी कोई करे तो फिर इस्लाम उसको देता है सजा। ऐसा नहीं है कि इस मुआशरे में आप वो सजा नाफिज कर देंगे, मुआशरा ये पूरी सोसाइटी कोलैप्स हो जाएगी। उसके लिए जो रास्ते हैं इस्लाम वो भी हमवार करता है ताकि एक मोमिन अच्छे से जिंदगी वो गुजार सके, वो वो गुजार सके। अच्छा, जो वो हदीस जो थी जो मैंने बताई थी कि अचानक पड़ जाने वाली निगाह माफ है, तो वो भी हमें मिलती है सुनन मुस्नद अहमद में मिलती है, तिरमिजी में, अबू दाऊद में, सुनन दारमी में हमें मिलती है कि हजरत बुरैदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से फरमाया था, हजरत अली से फरमाया था, ए अली, एक नजर के बाद दूसरी नजर ना डालना, पहली नजर तो माफ है मगर दूसरी माफ नहीं। यानी अचानक से अगर निगाह पड़ जाए तो उसके बाद ये नहीं कि पलट कर दोबारा देखना है उसको। पहली तो माफ है कि अचानक से पड़ गई, आप रोड पर ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपकी पड़ेंगी निगाह, ऐसा नहीं है कि आपकी निगाह नहीं पड़ सकती, लेकिन पहली माफ है, लेकिन दूसरी माफ नहीं है। एक और हदीस हमें मिलती है जिसमें इस चीज की और ज्यादा तस्दीक है, सही मुस्लिम में हदीस है, 2151 नंबर पे है, अबू दाऊद में भी हदीस है ये, और मुस्नद अहमद में भी और सुनन निसाई में भी ये हदीस आपको मिल जाएगी, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अचानक निगाह पड़ जाए तो क्या करूं। हजरत वो जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु थे, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल, अगर अचानक निगाह पड़ जाए तो मैं क्या करूं? तो फरमाया फौरन निगाह फेर लो या नीची कर लो। तो वो अचानक से निगाह पड़ जाने वाली बात है, इस हदीस में वजाहत है उसकी। अचानक से पड़ जाए तो फौरन नीचे कर लो, फेर लो अपनी निगाहों को वापस। अच्छा, नजर की जब आप हिफाजत करेंगे ना तो आप ईमान की ना लज्जत, एक मिठास महसूस करेंगे। लेकिन जिसने नजर की हिफाजत नहीं करी तो वो शर्मगाह की हिफाजत भी नहीं करेगा और वो ईमान की मिठास भी नहीं चख पाएगा। हमारे मुआशरे में लोग कहते हैं कि हमें वो ईमान की मिठास नहीं मिल पा रही जो अल्लाह ताला ने कुरान में वादा किया है कि मोमिन अल्लाह का जिक्र सुनकर उनके दिल कांप उठते हैं, अल्लाह की आयतें सुनकर उनका ईमान बढ़ जाता है, वो अल्लाह ताला के सामने सजदे वो सजदा रेज हो जाते हैं। देखिए, जो मोमिनों की सिफात हैं या जो अल्लाह ताला क्वालिटी बताते हैं वो हमारे अंदर तो नहीं पाई जाती। वो क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि हम एक ऐसे मुआशरे में हैं जहाँ बड़ा मुश्किल है ये चीज। एक हदीस है
तबरानी में ये हदीस आपको मिल जाएगी। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु इसके रावी हैं। वो रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है कि निगाहें इबलीस के जहरीले तीरों में से एक तीर है। इबलीस के जहरीले तीरों में से एक तीर है। जो शख्स मुझसे डर कर उसको छोड़ देगा, मैं उसके बदले उसे ऐसा ईमान दूंगा जिसकी वो मिठास अपने दिल में पाएगा। तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि ये जो निगाहें है ना, ये इब्लीस के तीरों में से एक तीर है, जहरीले तीरों में से। तो जो शख्स अल्लाह ताला से डर कर उसको छोड़ देगा, अपनी निगाहों को ऐसे ही आजाद नहीं छोड़ेगा, यानी अपनी नजर की हिफाजत करेगा, तो उसके बदले अल्लाह ताला उसको ऐसा ईमान देंगे जिसकी मिठास वो अपने दिल में पाएगा। ऐसे मिलेगा वो ईमान, ऐसे मिलेगा वो ईमान जब हमारी नजर हमारे काबू में रहेंगी, तब मिलेगा वो ईमान जिसकी मिठास वो अपने दिल में पाएगा। एक और हदीस हमें मिलती है मुस्नद अहमद में। अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु इसके रावी हैं। वो रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मुसलमान की निगाह वो किसी औरत की खूबसूरती पर पड़े और वो निगाह हटा ले, तो अल्लाह ताला उसकी इबादत में लुत्फ और लज्जत पैदा कर देता है। लुत्फ और लज्जत अल्लाह ताला पैदा कर देता है इबादत में, अगर वो अपनी निगाह की हिफाजत करता है। एक वाक्य मैं आपको बताता हूँ जो आपको सुनन अबू दाऊद में मिल जाएगा। सीरत का वाक्य है, 1833 नंबर पे। बुखारी में ये 1513 नंबर पे है। हजतुल हजतुल विदा के मौके पर, यानी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हज था, उसके मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक चचेरे भाई थे, एक कजिन थे, जिनका नाम था फजल बिन अब्बास, यानी अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे थे वो। उस वक्त वो हजतुल विदा के वक्त जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कजिन थे वो नौजवान थे, यानी वो लड़के थे। और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम से मतलब कि वापसी से वक्त, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊंट पर सवार थे, जो कि फजल थे, उनके कजिन थे। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऊंट पर बैठे हुए थे। रास्ते से जब औरतें गुजरने लगी तो फजल उनकी तरफ देखने लगे, यानी जो नौजवान लड़के थे, कि रास्ते से औरतें गुजरने लगी, तो जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कजिन थे वो उनको देखने लगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुंह पर हाथ रखा और उसे दूसरी तरफ फेर दिया। ये देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना मतलब अपनी जो जो बात पहुंचानी थी वो भी पहुंचा दी, और बिना अल्फाज के, सिर्फ क्योंकि वो नौजवान थे, वो लड़के थे, तो उनसे ये काम हुआ। तो उनका सिर्फ चेहरा पकड़ा और दूसरी तरफ कर दिया, मोहब्बत से। अच्छा, हम किसी को देख लें, अगर हम किसी को देख लें, दो कुरान की आयतें मारेंगे उसको, पांच हदीसें मारेंगे उसको, जलील कर देंगे। भाई नफ्स उसके साथ लगा हुआ है, शैतान उसके साथ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना बेहतरीन तरीका इख्तियार करा, उसका चेहरा पकड़ा दूसरी तरफ घुमा दिया, दैट्स इट। इसी से हमें एक एक हदीस और मिलती है जो कि बुखारी में है, अबू दाऊद में भी है, कि एक और औरत वो रास्ते से गुजरी थी जो कि एक कबीले की थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोककर हज के बारे में वो मसला पूछने लगी थी, ऊंट पर ही मसला पूछने लगी थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोककर। तो फजल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस पर निगाह गाड़ दी, यानी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कजिन थे वो, उन्होंने निगाहें उस औरत पर गाड़ दी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका मुंह पकड़कर फिर दूसरी तरफ कर दिया, यानी फेर दिया। तो ये हदीसें भी हमें मिलती है। तो नजर की हिफाजत इतनी अहम है। अच्छा, कुछ एक्सेप्शन भी है, ऐसा नहीं है कि नजर की हिफाजत ही करनी है। अल्लाह ताला ने कुछ एक्सेप्शन भी रखे हैं जिनकी शरीयत ने इजाजत दी है। जैसा कि किसी हकीकी जरूरत के तहत अगर किसी औरत को देखना हो तो आदमी देख सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर निकाह की नियत है, निकाह की नियत से आप लड़की को देख सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका इरादा निकाह का है। ठीक है, और भी एक्सेप्शन आते हैं, वो इंशाल्लाह आगे देखेंगे। तो निकाह के लिए भी आप लड़की को देख सकते हैं। ये हदीस भी सुनन तिरमिजी में है, सुनन निसाई में है, इब्ने माजा में ये हदीस है।
کہ ایک صحابی ہے मुगीरा बिन शेबा रज़ी अल्लाह अन्हु, वो रिवायत करते हैं कि मैंने एक जगह निकाह का पैगाम दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तुमने लड़की को देख भी लिया है? तो उन्होंने अर्ज किया नहीं। तो फरमाया, अल्लाह के रसूल ने कहा तो उसे देख लो, इस तरह ज्यादा उम्मीद की जा सकती है कि तुम्हारे बीच निबाह होगा। इस तरह ज्यादा उम्मीद की जा सकती है, पहले देख लो। और इसी से मिलते जुलते वो काफी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसें बताई हैं कि जिसमें लड़की को देखने की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तरगीब दी है। यानी अगर कोई नहीं भी देख रहा है ना, वो डायरेक्ट निकाह करना चाह रहा है कि मैं निकाह कर रहा हूँ, अल्लाह के रसूल मैं देखूंगा नहीं, उसको भी कहा पहले देख के आ। वो हदीसें ही मौजूद हैं। वो वक्त नहीं है, इंशाल्लाह किसी और दिन वो हदीसें भी आपके सामने आएंगी। और इसके अलावा भी और कंडीशन में मतलब देखना चाहिए था, जैसे एक एक जज है, अब वो मुजरिम अगर कोई लेडीज है या गवाह के तौर पे अगर उसको उसका फेस उसको देखा जा सकता है, ठीक है, देखा जाएगा। डॉक्टर है, डॉक्टर अगर कोई ट्रीटमेंट कर रहा है तो लड़की को देखा मतलब जाएगा। तो बेहतर तो ये रहे कि लेडीज डॉक्टर आप देखें, ठीक है। वो एक वो होता है कि लेडी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, हमारी मजबूरी आ गई, जान पर आ चुकी है, तो फिर जान बचाना फर्ज है, तो फिर जेंट्स डॉक्टर को भी दिखाना जायज है। तो ये हदीसें थी। तो कुछ निगाह की हिफाजत के लिए अभी ये आयत का मुताला कंप्लीट नहीं हुआ है, टाइम हो चुका है हमारा, लेकिन अभी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं मोमिन, ये एक बड़ी चीज है। और अभी हमारा है, हमने जो हमारे मुआशरे में कितनी जिनाकारी आम है, उस पर हमने अभी कुछ देखा भी नहीं। तो इंशाल्लाह इस पर आगे मुताला आगे कंटिन्यू रहेगा। जज़ाकल्लाहु खैर।